Good morning. My name is Ramesh Kumawat. I am a physics faculty and I belong to Sikar, Rajasthan. Regarding my professional qualification, I completed BTech in Electrical Engineering from RTU Kota in 2016. Since 2016, I have been teaching for JEE and NEET. During this period, many of my students are selected in IITs, NITs and MBBS. One of my students, Nirali Ganvit, secured 58 rank AIR in NEET 2019 and Raghav Galgali was selected in KVPY in 2019 and many students are selected in IITs and many scored 99 plus percentile in JEE Mains. Regarding my academic qualification, I completed 10th and 12th class from Rajasthan Board of Ajmer. RBSC Ajmer. And regarding my work experience, so I started my journey of teaching from IIT Gurukul Surat in 2016. Then I taught there for 3 years, 2016 to 19. Then currently I am teaching in Kota Science Academy, Baramati since 2019. So it is about my experience and all about me. Now, today I am going to start the topic rigid body dynamics. So before starting this chapter, we should understand what is the meaning of rigid body. So rigid body is a body in which, or we can say it is the system of particles in which distance between 2 points does not change with time. Like if I consider this board and there are 2 points, point A and B. If this board is either at rest or in motion, then the distance between two particles A and B always remains constant. So there is a simple definition of rigid body. It is a system of particles in which distance between two particles or 2 points remains constant. Clear? Now the second point is, the important and second point is, in rigid body two particles either are at rest or have circular motion. ये दो पार्टिकल जो है या तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे, अदरवाइज इनकी मोशन कौन सी होगी? सर्कुलर होगी. देयर इज नो रेक्टिलिनियर मोशन बिटवीन दीज टू पार्टिकल. There are many examples of rigid body, like we can consider this board. This is a rigid body because we point any two particle. अगर मान लो हम कहीं भी दो पॉइंट बनाएंगे, देन इनके बीच की डिस्टेंस में से क्या होगी? कांस्टेंट होगी. लाइक दिस मार्कर इज अ रिजिड बॉडी. व्हाई? बिकॉज सेपरेशन रिमेन्स कांस्टेंट. इज आवर बॉडी रिजिड? नो. व्हाई? बिकॉज लाइक अभी मेरे हैंड के बीच में ये सेपरेशन है, बाद में ये भी हो गया, तो ये रिजिड बॉडी नहीं होगी. तो रिजिड बॉडी का सीधा सा कंसेप्ट है. रिजिड बॉडी में दो पार्टिकल जो होंगे या तो उनकी सर्कुलर मोशन होगी और अदरवाइज both are at rest. Now let us consider velocity of particle B is Vb and velocity of particle A is Va. Let's the angle is theta 1 and the angle is theta 2. So if these two particles are at rest, it means the velocity along the joining line remains constant. मतलब क्या हो गया? इनकी जो वेलोसिटी है ये क्या रहेगी? लाइन के अलोंग कांस्टेंट. तभी तो रेस्ट में होंगे, जिसे कि हम रिलेटिव मोशन में पढ़ते हैं कि इफ टू पार्टिकल मूव इन द सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी देन दे रिलेटिवली आर एट रेस्ट. इट मीन्स क्या हो गया? वी कैन राइट हियर v1 va cos theta 1 is equal to vb cos theta 2. So this is all about this is all about rigid body. Now the point is, a rigid body can perform linear, rectilinear motion, circular motion and rotational motion. जो rigid body है वो linear motion भी मूव कर सकती है, rotational भी कर सकती है and circular भी कर सकती है. So before starting rotational motion, we should understand the difference between rotational and circular motion. What is the difference between rotational and circular motion? क्या difference होगा rotational और circular motion में? Remember,
Rotational motion means a body which rotate about its center of mass, or we can say the axis of rotation and the axis of center of mass both lie at the same point. Then the motion of body is known as rotational body. Clear? Like there is simple example, fan. किसी भी रूम में अगर मान लो फैन है तो फैन का मोशन कौन सा होगा? रोटेशनल मोशन. बिकॉज फैन में क्या होगा? फैन का जो रोटेशन है वो अबाउट द सेंटर ऑफ मास है. लाइक अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास. Clear? Then its motion is rotational motion. So it's a simple example. In rotational motion, the axis of rotation and axis of center of mass both lie at the same point. So now what about circular motion? Remember, in circular motion, the rotation of particle is not about, or we can say other than center of mass axis, or we can say the axis of rotation and the axis of center of mass both are different. Like if we consider simple example, like earth rotate around the sun. Let's consider ये sun है and earth is rotating around the sun. So we can see here the center of mass of earth is lie at this point, but it is rotating about sun, center of mass of sun. So axis of rotation and एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास बोथ आर डिफरेंट. तो किसी भी बॉडी में अगर एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों डिफरेंट होंगे, दोनों डिफरेंट लाइन से पास होंगे, देन द मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन. क्लियर? आई होप you understand what is the difference between rotational and circular motion. Now the first point in rotational motion is moment of inertia. It is very interesting point and इसका अपने डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ है. So before starting moment of inertia, we should understand what is the meaning of inertia. Inertia क्या होता है? So in NLM Newton's laws of motion हमने पढ़ा था inertia. The meaning of inertia is that it is inability to move, to change the state of motion. किसी भी बॉडी की inertia एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसकी मोशन में चेंज का अपोज करती है. क्लियर? इट मीन्स वी कैन से इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट, और इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन इट ट्राइज टू रिमेन इन constant motion या constant motion with constant velocity. Clear? Now, so what is the meaning of moment of inertia? Moment of inertia. Moment of inertia, which is denoted by I. So moment of inertia, इसका अगर हम फिजिकल मीनिंग समझेंगे तो इसका मीनिंग होगा हाउ डिफिकल्ट टू रोटेट अ बॉडी. किसी भी बॉडी को अगर हमें रोटेट करना है तो कितना डिफिकल्ट होगा. लाइक इफ आई वांट टू रोटेट दिस मार्कर देन देयर आर मेनी मेथड्स. लाइक फर्स्ट मेथड इज दिस वन विच इज ईजीएस्ट वे. इसको हम क्या करेंगे, इसका जो लेटरल पोर्शन है इसके अकॉर्डिंग अगर इसको रोटेट करेंगे. नाउ द सेकंड वन मेथड इज लाइक रोटेट इन दिस फैशन. सो इट इज डिफिकल्ट अदर देन द प्रीवियस. तो ये तुम्हें याद रखना है कि किसी भी बॉडी को जब हम रोटेट करेंगे तो उसके रोटेशन में जो हर्डल्स आएगी दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हाउ डिफिकल्ट टू रोटेट अ बॉडी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी and if we derive its formula then it's a simple, like let there is a point mass which is rotating about an axis at a distance r. So its moment of inertia I is equal to m into r square. मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर. क्लियर? ये इसका क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रहेगा. एंड वी ऑल्सो कैन डिराइव इट. इसको हम काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट से डिराइव भी कर सकते हैं. कंसेप्ट क्या रहेगा? लाइक लेट अस कंसिडर अ रिजिड बॉडी एंड देयर आर मैनी पार्टिकल्स in this rigid body. So let's consider like there is a particle having mass m1 at a separation r1, another particle is rotating m2 at distance r2, third one particle m3 at the distance r3. So if this body is rotating with angular velocity omega
So we can write here the kinetic energy of each particle. So according to the formula of kinetic energy is equal to half mv square. Now all three particles are, and there may be more particles but we considered only three particles. तो all three particles are rotating about this axis. और आपको ये भी याद रखना है कि रोटेशनल मोशन में एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी हमें याद रखना है कि these all three particles have equal rotational equal angular velocity. इन सब के लिए ओमेगा क्या होगा, सेम होगा, बट देयर लीनियर वेलोसिटी आर डिफरेंट. इनकी लीनियर वेलोसिटी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, बिकॉज देयर इज अ रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा r. The distance of each particle from the axis of rotation is different and एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सबकी सेम होगी. दैट इज वाई लीनियर वेलोसिटी इज डिफरेंट. ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है जेई मेंस और नीट के लिए. क्लियर. इट मीन्स क्या हो गया, इन अ रिजिड बॉडी ऑल पार्टिकल्स हैव equal angular velocity but may have different linear velocities. Clear. So if I write kinetic energy of this rigid body, then the kinetic energy is half for the first particle, half, let us consider its velocity is v1, velocity v2 and velocity v3. So half m1 v1 square kinetic energy of system of particles plus क्या हो गया, half m2 v2 square plus half m3 v3 square and so on. Clear. So now the kinetic energy can be written as v is equal to omega r. V is equal to omega r. So half m1 v1 is omega r1 square plus half m2 v2 is omega r2 square plus half m3 v3 is omega r3 square and so on. Now we can write it half m1 omega square r1 square plus half m2 omega square r2 square plus half m3 omega square r3 square. Clear. नाउ द काइनेटिक एनर्जी बिकम, तो अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से कॉमन रहेंगे यहाँ पर. तो देखो हर एक में हाफ और ओमेगा यहाँ पर कॉमन होगा. सो वी कैन राइट इट हाफ ओमेगा स्क्वायर. क्लियर. सो इट इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन. क्लियर. डिवाइड. नाउ ये हो गया. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, ओमेगा हाफ ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया. एंड रिमेंबर दिस क्वांटिटी इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एंड ये क्वांटिटी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज डिनोटेड बाई आई. सो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर विच इज नोन एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. सो हमें डिराइव करना था फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया. देखिए डेरिवेशन जो है बोर्ड के लिए या फिर हमें जे एडवांस के कॉन्फिडेंस के लिए ये हमें आना भी चाहिए, बट अगर अपना डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होगा तो भी अपना काम चल सकता है. क्लियर. सो रिमेंबर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी ऑफ अ पॉइंट मास I is equal to mr square. I is equal to mr square where m is the mass of the particle and remember r is the perpendicular distance. R is the perpendicular distance from axis of rotation. ये भी हमें याद रखना है. R जो ना कई बार बच्चा फॉर्मूला रट लेता है इसको, बट उसको यहाँ पर जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं उनका प्रैक्टिकल मीनिंग पता नहीं है. तो R जो यहाँ से डिस्टेंस किसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर. क्लियर. तो ये हमें याद रखना है. तो फॉर द पॉइंट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr स्क्वायर. रिमेंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी. कौन सी रहेगी ये, स्केलर क्वांटिटी. Scalar quantity. And if we discuss about its dimension, इसकी जो डायमेंशन होगी क्या हो गया यहाँ पर, मास इनटू मीटर स्क्वायर. इट मीन्स क्या हो गया, m1 l2 t raised to 0. क्लियर. नाउ on what factor moment of inertia depend? So moment of inertia depend on mass of the body. एक तो body के mass पे depend करेगा and distance from the axis of rotation and also density of the body.
शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। जो अभी हम धीरे धीरे क्या करेंगे, जब कंटिन्यूस मास सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम की स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हमें इसके अलग अलग शेप के लिए डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आएगा। लाइक रिंग के लिए डिफरेंट होता है, डिस्क के लिए डिफरेंट होगा, तो वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। नाउ अब कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर हम ट्राई कर लेते हैं। एंड रिमेंबर, अगर मान लो मोर देन वन पार्टिकल है तो हम डायरेक्टली उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं? बिकॉज ये सिंपल एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर लॉ को फॉलो करेगा। नाउ लेट अस कंसीडर देयर इज वन एक्सिस एंड few some particles m1, m2, m3 at distance r1, r2, r3 are rotating with some velocity omega. Then the moment of inertia of system of particle I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square and so on. क्लियर? तो ये कंसेप्ट रहेगा। अब इस पर काफ़ी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जिससे पहले हम बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक देर आर फोर पार्टिकल्स हैविंग मास इक्वल मास m आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर के कॉर्नर पे हमने फोर पार्टिकल को पुट किया, मास इनका इक्वल है। लेट अस कंसीडर द साइड ऑफ स्क्वायर इज a एंड दिस स्क्वायर इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो स्क्वायर है ये कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है? जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास और प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो नाउ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल? इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए अपने दिमाग में छोटा सा फॉर्मूला होना चाहिए, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। m मास हो गया एंड r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ईच मास। सो देखिए यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इट इज नाउ the side of square is a, so we can say its diagonal is root 2a. Clear? Now this is the half of the diagonal, so it will be a by root 2. So we can say all these particle m1, m2, m3, m4 are at a distance a by root 3 from the axis of rotation. So moment of inertia can be written as, अब देखो चारों मास सेम है तो हम लिख सकते हैं एक पार्टिकल के लिए कितना हो गया m इंटू आर स्क्वायर, आर कितना हो गया यहाँ पर a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? ऑल फोर पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल सो इट कैन बी मल्टीप्लाइड बाई 4। क्लियर? और अगर मास डिफरेंट होगा तो सभी को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, I इज इक्वल टू m इंटू a स्क्वायर बाई 2 इंटू कितना हो गया 4। सो I इज इक्वल टू 2m a स्क्वायर, ये से क्या हो गया 2 टाइम्स कट हो गया। क्लियर? तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2m a स्क्वायर। अब इसी मास डिस्ट्रीब्यूशन में यहीं पे पॉइंट मास के लिए डिफरेंट एक्सिस के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो सकता है। लाइक अभी हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से कंसीडर किया है। इफ आई कंसीडर द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस वन पासिंग थ्रू ए बी सी डी, तो आपसे क्वेश्चन में क्या आएगा, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू डायगोनल AC, जो डायगोनल AC से पास होगी। तो यहाँ कोई कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्ट क्या हो गया, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। नाउ द आर डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना हो जाएगा 0। तो I इज इक्वल टू 0 प्लस 0 लिखने की जरूरत में नहीं है बट लिख देते हैं। नाउ ये दोनों जो पार्टिकल है इन दोनों पार्टिकल का वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा। क्लियर? एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है a बाई रूट 2। क्लियर? सो इट कैन बी रिटन एज एम आर स्क्वायर, तो एम a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया एम a स्क्वायर बाई 2। क्लियर? बट इट इज ओनली फॉर सिंगल पार्टिकल, देयर आर 2 मास, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो I कितना हो गया एम ए स्क्वायर। और इसको हम डायरेक्टली भी लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर 4 के लिए कितना था, हालांकि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज है यहाँ पर, तो कितना आ गया एम ए स्क्वायर। क्लियर? नाउ देयर मे बी मेनी क्वेश्चंस, लाइक मान लो कि आपको दे दिया कि अबाउट एन एक्सिस विच इज
पैरेलल टू बी डी एंड पासिंग थ्रू ए। एक ये वाली एक्सिस आपको गिवन है कि अबाउट एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू बी डी। ये क्वेश्चन जो है जेई में आया हुआ है और ये नीट में भी आया हुआ है। तो अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू बी डी एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है इन तीनों में, ठीक है। इसमें क्या आएगा, देखो वैसे ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास कितना हो गया, 0। क्यों, बिकॉज एक्सिस जो है वो पॉइंट मास से ही पास हो गई है। नाउ दीज फॉर दीज टू मास विच आर एट पॉइंट बी एंड डी, तो इन पॉइंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो देखो यहां पर हो जाएगा I इज इक्वल टू, नाउ दिस डिस्टेंस इज a बाई रूट टू, सिमिलरली बोथ दीज टू डिस्टेंसेज आर a बाई रूट टू, सो वी कैन राइट हियर 2 इंटू m a बाई रूट टू का होल स्क्वायर प्लस, नाउ फॉर दिस मास, इस मास के लिए क्या होगा, सो द डिस्टेंस इज रूट टू a डायगोनल, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर m a स्क्वायर, तो a रूट टू का होल स्क्वायर। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 2 इंटू m a स्क्वायर बाई 2 प्लस m a स्क्वायर इंटू 2। क्लियर, नाउ 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, देन m a स्क्वायर प्लस 2m a स्क्वायर, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 3m a स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट नॉट अ डिफिकल्ट क्वांटिटी। अगर इसके क्वेश्चंस को हम पॉइंट मास के लिए देखेंगे तो इन तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेनी मोर क्वेश्चन हो सकते हैं, लाइक आपको ट्राइंगल गिवन होगा, क्लियर, ठीक है, आपको बोला जाएगा लेट देयर आर 3 मासेस m1 m2 m3, मे बी ये ट्राइंगल जो है ये इक्विलेटरल हो या फिर कोई भी आपको ट्राइंगल का टाइप गिवन होगा, तो इसमें भी हो सकता है। लाइक आपको कभी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये गिवन होगी, इसके अबाउट कितना होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सीधा सा कंसेप्ट है, आपको मास देखना है और उस मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आपको देखनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। क्लियर, तो ये कंसेप्ट रहेगा। अब यहाँ पे कितने भी न्यूमेरिकल किए जा सकते हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास। अब काफ़ी वेराइटीज के क्वेश्चन है, लाइक इसे मान लो कि आपको गिवन है, आपको एक एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन होगी, ये मास हो गया यहाँ पर m1, मास हो गया m2, एक्सिस को हम चेंज करेंगे, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफेक्ट आएगा, तो वो भी हम सम कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ अब हम देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम और वी कैन से फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, तो सबसे पहले तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, तो आपको याद रखना कंटिन्यूअस मास सिस्टम में जो बॉडी का मास है वो उसकी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लाइक एक वायर से एग्जांपल लेते हैं मार्कर, तो ये मार्कर जो रहेगा इसका मास क्या है, एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। लाइक इस बोर्ड का मास, तो बोर्ड का मास क्या होगा, इस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और लाइक हम एग्जांपल लें तो इस रूम का मास, तो इस रूम का जो मास होगा ये पूरा 3D में मतलब इस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मास के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग 3 क्वांटिटीज को हम डिफाइन करते हैं, विच आर लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी। क्लियर, तो द टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस और डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। क्लियर, सो फर्स्ट में पॉइंट याद रखना है, लीनियर मास डेंसिटी। नाउ लीनियर मास डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय लैम्बडा। सो लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ m बाई एल। लाइक आपको कोई भी लीनियर बॉडी गिवन है, लाइक सिंपल एक रोड गिवन है, ठीक है, तो रोड का जो लीनियर मास डेंसिटी होगा लैम्बडा इज द मास ऑफ रोड इज m एंड इट्स लेंथ इज l, तो इसके लिए लैम्बडा कितना आएगा m बाई एल। लाइक आपको गिवन है देयर इज अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड इट्स रेडियस इज r, देन इसके लिए लैम्बडा क्या होगा, सो वी कैन राइट लैम्बडा इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला m बाई एल, तो मास कितना हो गया m एंड लेंथ, तो देखो इफ रेडियस ऑफ रिंग इज r देन इट्स कंप्लीट अगर होगी तो 2 पाई आर, यहाँ पर क्या है हाफ, तो क्या हो गया पाई आर। क्लियर, सिमिलरली यहाँ पर क्या हो सकता है, सरफेस मास डेंसिटी विच इज ऑल्सो नोन एज एरियल मास डेंसिटी, सरफेस
mass density. Surface mass density denoted by sigma. So sigma is equal to mass by area, mass upon area. Clear? तो सिग्मा कब डिफाइन करेंगे? तो आपको याद रखना है when mass is distributed on a two-dimensional body, we can say on an area. Like हम एक रेक्टेंगुलर प्लेट गिवन है, its length is L and its width is B, so we can write its sigma is, if its mass is m, तो सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया, एरिया क्या हो गया? L इंटू बी. तो ये हमें याद रखना है. सिमिलरली क्या होगा? वॉल्यूम मास डेंसिटी. सो वॉल्यूम मास डेंसिटी फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि हमें जब भी डेरिवेशन करेंगे तो इन तीनों का रिक्वायरमेंट होगा. वॉल्यूम मास डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय रो. क्लियर? सो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, m बाई वी. क्लियर? नाउ ये 3D के लिए रहेगा. लाइक जैसे आपको गिवन है कि लेट देयर इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m, देन इट्स वॉल्यूम मास डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई r क्यूब. लाइक आपको गिवन है अ क्यूब और क्यूबॉइड, जो भी आपको गिवन हो. लाइक हम एक क्यूब कंसिडर करते हैं, a cube having side A, clear, and mass m, then its volume mass density m by volume A cube. So this is all about linear mass density, surface mass density and volume mass density. Now अब हम क्या करते हैं, 1 by 1 जो है बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं. लाइक एक रोड जो है, अब इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, लेट दिस इज ए रोड एंड रोड को हम रोटेट कर रहे हैं किसी भी गिवन एक्सेस के अबाउट. अब एक्सेस जो होती है वो एंड से भी हो सकती है, सेंटर ऑफ मास से भी हो सकती है और एनी पर्टिकुलर पॉइंट से हो सकती है. बट कुछ दो फॉर्मूले जो है अबाउट वन एंड एंड अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो हमें डायरेक्टली लर्न होनी चाहिए. बाकी जो हम उसको प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है? कुछ थियरम आएगी, पैरेलल एक्सेस थ्योरम, जिसको हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम किसी भी एक्सेस के अबाउट रोटेट करेंगे तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? सो नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड, और वी कैन से यूनिफॉर्म रोड. रोड के भी दो टाइप हो सकते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. लाइक ये जो मार्कर है, इस मार्कर का ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ तक का जो व्हाइट वाला पोर्शन है, इट इज यूनिफॉर्म रोड. आफ्टर दैट अब इसके बाद जो रहेगा ये यूनिफॉर्म नहीं है. ठीक है? ये क्या रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म. क्लियर? तो अब यह देखते हैं हम. फर्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रोड. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रोड. ठीक है? सो लेट्स कंसिडर देयर इज अ रोड of mass m and length l, एंड हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि किसी भी गिवन एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है. लाइक दिस रोड इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस L1 डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड. किसी एक एंड से कितने डिस्टेंस पर है? L1. क्लियर? नाउ फर्स्ट थिंग देखो, जब भी हमें डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, बिकॉज ये काफ़ी चैप्टर में अपने यूज़ होने वाला है. इससे पहले सेंटर ऑफ मास में भी यूज़ होता है, रोटेशनल में भी यूज़ होगा, देन फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, वहाँ भी यूज़ होगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी यूज़ होगा, एंड काफ़ी कुछ और चैप्टर ऐसे आएंगे जैसे EMI वगैरह, जहाँ पर हमें ये कंसेप्ट फॉलो करना होगा. तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है कि किस तरीके से यहाँ पर हम एलिमेंट मेथड को सोल्व करते हैं. तो देखो, अगर मान लो हमें इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला लगाया जाए? तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, फॉर अ पॉइंट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? I इज इक्वल टू mr². क्या ये रोड पॉइंट मास है क्या? नो, दिस इज नॉट ए पॉइंट मास, बिकॉज मास क्या है? लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो फर्स्ट थिंग वी विल टेक एन एलिमेंट. हम एक एलिमेंट लेंगे एंड उसको हम कंसिडर करेंगे एक पॉइंट मास. अब एक रोड के लिए एलिमेंट क्या होगा? तो देखो, एलिमेंट किसी भी बॉडी का वो एक इनफाइनाइट
पार्ट होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है जिससे वो बॉडी बनती है। लाइक जैसे मान लो कि सिंपल से एग्जांपल, अगर हमें रोड बनानी है तो इसके फॉर्मेशन में क्या कंसेप्ट रहेगा। लाइक जैसे मान लो कि अगर मैं इसको डिफरेंट पीस में यहाँ पर कट कर दूँ और उन पीस को ऐड करूँ तो क्या बन जाएगा, रोड बन जाएगा। और जो पीस होगा वो इस रोड का क्या होगा, एक एलिमेंट होगा। तो रोड के लिए एक एलिमेंट क्या होगा, तो स्मॉल पीस होंगे। तो हमने भी क्या किया, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस पर एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया जिसका मास कितना है dm एंड इट्स विड्थ, इसकी लेंथ कितनी है dx। क्लियर। नाउ दिस एलिमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट मास। इस एलिमेंट को हम एक पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m इंटू आर स्क्वायर। बट इस पॉइंट मास के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर करेंगे di। सो di इज इक्वल टू क्या हो गया, dm इंटू आर, कितना हो गया यहाँ पर x स्क्वायर। एंड अगर हमें इस रोड के लिए फाइंड करना है तो इन सब एलिमेंट का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड कर सकते हैं। सो जब भी फिजिक्स में आपको ऐड करना हो, द मीनिंग ऑफ एडिशन इज इंटीग्रेशन। क्लियर। इंटीग्रेशन का मीनिंग ये होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, डी आई। क्लियर। तो देखिए डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो गया यहाँ पर, आई। नाउ द मेन पॉइंट इज हाउ टू राइट डी एम। इट्स अ सिंपल कंसेप्ट। कैसे लिखेंगे तो आपको याद रखना है, यूनिटरी मेथड हम यूज कर सकते हैं। देखो यूनिटरी मेथड में क्या करेंगे, इफ लेंथ ऑफ रोड इज L देन इट्स मास इज कितना है, m। क्लियर। नाउ इफ लेंथ ऑफ रोड इज यूनिट, अगर रोड की लेंथ कितनी हो, यूनिट, देन मास कितना हो जाएगा, देन मास, यूनिट मास का जो यूनिट लेंथ का जो मास होगा कितना हो जाएगा, m/l विच इज ऑल्सो नोन एज लेमड़ा। मतलब l लेंथ का मास कितना, m, तो यूनिट का कितना हो गया, l से डिवाइड कर दो। नाउ मास ऑफ लेंथ dx। अब हमने जो एलिमेंट लिया इसकी लेंथ कितनी है, dx। देखो अगर यूनिट लेंथ का मास m/l है तो dx लेंथ का जो मास हमने कंसिडर किया dm इज इक्वल टू m/l इंटू dx। क्लियर। एंड इसको वैसे लिख सकते हैं लेमड़ा इंटू dx। क्लियर। सो नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू डी एम की वैल्यू क्या हो गई, m/l इंटू डी एक्स। आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको समझेंगे तो ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बट ये हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी बॉडी के लिए, आइदर वो रोड हो, रिंग हो, डिस्क हो, मोमेंट कुछ भी हो, जब भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो हमेशा डीएम फाइंड करने का ये कंसेप्ट रहेगा। क्लियर। सो डीएम कितना हो गया यहाँ पर, लेमड़ा इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए अब हमें लगाना होगा यहाँ पर लिमिट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे। सो लिमिट कैसे लगाएंगे, तो देखो लेमड़ा तो एक कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया m/l, एंड ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ द लिमिट इज, तो देखो जिस पॉइंट को जहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होगी इसको हमें कंसिडर कर लेना है 0,0। क्लियर। नाउ अब 0 के अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव मार्क्स है, नेगेटिव आएंगे तो -l1 2, यहाँ से कितना हो गया, टोटल लेंथ कितनी है l, सो इट इज l माइनस l1। क्लियर। तो ये हो जाएगा l माइनस l1। क्लियर। सो -l1 टू l माइनस l1। अब इसको सिंपल हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करने का मेथड क्या रहेगा, सो i इज इक्वल टू लेमड़ा एक्स स्क्वायर, तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ क्या हो गया, x रेज टू n+1 2+1 अपॉन 2+1, एंड लिमिट फ्रॉम -l1 टू l माइनस l1। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, i इज इक्वल टू लेमड़ा। नाउ 3 जो है कांस्टेंट है, इसको हम बाहर पुट कर सकते हैं और ये क्या हो जाएगा, x³ लिमिट -l1 टू l माइनस l1। क्लियर। तो i इज इक्वल टू लेमड़ा/3। क्लियर। और ये क्या हो गया यहाँ पर, l माइनस l1 का क्यूब माइनस -l1 क्यूब। क्लियर। सो i इज इक्वल टू लेमड़ा/3
और वी कैन राइट इट लेमडा m बाई एल, एल कितना हो गया m बाई 3l, और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों l माइनस L1 का क्यूब प्लस L1 का क्यूब। अब देखो ये फॉर्मूला ऐसे रटने में याद नहीं होगा, बट आप इसका कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। अब अगर मान लो बोला जाए कि इफ़ दिस रोड इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड, अगर ये रोड जो है इस वन एंड के अबाउट, कौन सा पॉइंट आ गया, इफ़ दिस रोड इज रोटेटिंग अबाउट वन एंड, किसी एक एंड से रोटेट हो रही है लाइक दिस फैशन, अगर इसको हम समझे तो कुछ इस तरीके से एक एंड के अबाउट रोटेट हो रही है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L1, तो अब L1 कितना हो गया 0, तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं L1 इज इक्वल टू 0, और जैसे हम इस फॉर्मूले में L1 को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I इज इक्वल टू m बाई 3l, और ये हो गया अपने पास l माइनस 0 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब, तो I इज इक्वल टू m बाई 3l इंटू क्या हो गया l क्यूब, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3। अब आप इसको याद रख सकते हैं, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। व्हेन अ रोड इज रोटेटेड अबाउट इट्स वन एंड, किसी एक एंड के अबाउट रोटेट करेंगे, देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml स्क्वायर बाई 3। नाउ इफ दिस रोड इज रोटेटेड अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा, तो देखो सेंटर ऑफ मास में तुम्हें याद रखना है कि ये बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, तो L1 की वैल्यू माइनस L, ठीक है, L1 की जो वैल्यू होगी दैट इज L बाई 2, L1 कितना हो जाएगा L बाई 2, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू m बाई 3l, और ये कितना हो गया यहाँ पर L माइनस L1, जिसको हम पुट कर देंगे L बाई 2 का क्यूब प्लस L1 का क्यूब, L1 क्या हो गया L बाई 2 का क्यूब, ठीक है, इसको भी हम L बाई 2 पुट कर सकते हैं। जब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर आएगा अपने पास ml स्क्वायर बाई 12, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले जो है वो आपको याद भी रखना है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो आज आपका टास्क क्या रहेगा, आपको पॉइंट मास के जो भी न्यूमेरिकल्स मिले, लाइक हम किसी पॉइंट सिंगल मास को, डबल मास को, इस मास स्क्वायर पे हो, क्यूब पे हो, क्यूबॉइड पे हो, रेक्टेंगल पे हो, वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको ट्राई कर लेने हैं। एंड आपको रोड, यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं, तो डेरिवेशन भी आपको पता होना चाहिए। एक जेईई के स्टूडेंट को जो है डेरिवेशन पता होना चाहिए, अदरवाइज नीट का स्टूडेंट जो है वो याद रखेगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अदर बॉडीज लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्लैब, लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, डिस्क, क्लियर, उन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिराइव करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।